Good afternoon, all. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Presentation is visible to all. You can see the Yes, presentation. ma'am. Yes, ma'am. Okay. So today's topic is the maxillofacial injuries. It is most common in the collision sports, right? Okay. So first we will discuss about the introduction of the maxillofacial injuries. So most maxillofacial injuries in sports occur as isolated injuries. As with major trauma, the highest priority must be given to the adequacy of the patient's airway. I'm sorry, is there any noise from my background? Or my Ma'am, not voice is much. clear? Ma'am, your voice is clear. Fine. Not much, okay. Okay, so we'll continue. So what is the second point? That is the as with major trauma, the highest priority must be given to the adequacy of the patient's airway. So blows to the neck resulting in a fracture of the larynx are more likely to produce serious compromise of the airway, require emergency treatment. Whatever there will be a head injury, where there will be a maxillofacial injury, your on-field job is to refer emergency care. Okay, because there can be blood loss also, there can be unconsciousness of the patients also, and there can be a severe trauma inside to the head also. So just go and check the airways and consciousness level of the consciousness of the athlete, and refer to the emergency care. This is the basic of the any head injuries, related to any head injuries, because अभी आपके सिलेबस में हेड इंजरी नहीं है, ऑन फील्ड असेसमेंट स्पेशली। अभी अगर किसी को भी हेड में इंजरी होता है तो वो जो बोर्ड है, उस गेम का जो बोर्ड है, उनके तरफ से बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं इंडिविजुअल गेम्स के लिए, तो उसके हिसाब से आपको आपका मेडिकल केयर देना होगा। एंड वहां पर एक मेडिकल डॉक्टर रहता है किसी भी मैच में। आप किसी भी, इधर इट इज बास्केटबॉल गेम, इधर इट इज हॉकी गेम, इधर इट इज क्रिकेट गेम, कुछ भी कोई भी गेम है, वहां पर आपका एक मेडिकल डॉक्टर वहां प्रेजेंट रहता है। तो इफ देयर इज एनी मेडिकल इमरजेंसी, यू कैन refer that athlete to the emergency care, and your on-field assessment is to check the airways only. Okay, if there is any restriction in the airway, you can manage in the meantime with your CPR management and other emergency treatment on field. Okay, so difficulty with breathing as a result of oral, nasal, or pharyngeal bleeding is rarely a problem in low energy trauma, but positioning of the patient on his or her side or in a prone position may be necessary for comfortable air exchange until hemorrhage is controlled. So whatever condition will be there during on-field injury, your main aim is what? To check the airways and to maintain the airways of an athlete or patient. So after management of the airway and breathing, control of bleeding is the next priority in the initial treatment. Applied with sterile gauze sponges or any clean absorbent cloth is the mainstay of primary therapy for wounds of the head, face, and neck. If there is any concussion injury, there is a format. I think I discussed with you, or I don't think so, discussed with you. I think with MPTs I have discussed this, the concussion injury. Okay.
So what is your suppose you are a team physio of particular team, suppose hockey, and there is the direct trauma through hockey stick to the head, and the athlete got injured and becomes unconsciousness. So what will be your line of treatment initially, or in the acute phase, or in the on field? Any idea? No idea. What would be your on-field Ma'am. assessment and treatment? If Ma'am, if there will be any kind of a bleeding, then our main goal is to prevent the bleeding at first. और if अगर मतलब हॉकी की स्टिक अगर उससे ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ फैरिंग्स मतलब लैरिंग्स में जिससे कि वो जो ब्रीदिंग एयर वे है उसमें अगर कोई दिक्कत है तो वो सब इमरजेंसी में पेशेंट का जाएगा. okay, so okay, correct, but the main aim is your control the breathing. उसका ब्रीदिंग पैटर्न नहीं हटना चाहिए, मतलब उसका ब्रीदिंग रहना चाहिए. ब्लीडिंग हो रहा है, ब्रीदिंग की बात कर रही हूं मैं, उसको उसकी पल्स रेट आनी चाहिए. ब्लीडिंग की बात है, दैट इज द अदर पार्ट. Of course, we have to control it, but the main aim as a medical professional there on the field is to control the airway. What is the ABC treatment? If you remember the CPR, you know na CPR? CPR पता है ना सबको? Yes, ma'am. CPR, you all know? Yes, ma'am. Okay, so the main aim is to control the breathing first. आई थिंक सीपीआर के तो ऐसे नॉर्मली अगर कोई मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं भी है उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में एंड डिस्ट्रिक्ट्स में. बिकॉज अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी को भी कार्डियक अरेस्ट हुआ है सपोज, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द सीपीआर. ओके, टिल देन the medical emergency team will be there. You can maintain the airway of a person, of a normal person, through CPR. Okay, so on field assessment or treatment, if there is a severe bleeding through the head and the patient's conscious level is not good, so what will be your line of treatment is to control the breathing only, first line of treatment. In the meanwhile, जैसा मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाइड विद स्टेराइल गॉज स्पॉन्जेस और एनी क्लीन एब्जॉर्बेंट क्लॉथ इज द मेनस्टे ऑफ प्राइमरी थेरेपी फॉर वुंड्स ऑफ द हेड. और आपको ब्रीदिंग कंट्रोल भी करना है उसी टाइम में, दोनों चीजें एक साथ ही करनी है. आप एक साइड में उसका ब्लीडिंग स्टॉप करके उसका एयरवे कंट्रोल करोगे, बिकॉज अगर एयरवे कंट्रोल नहीं करोगे एंड आप ब्लीडिंग रोकने के चक्कर में अगर पेशेंट का ब्रीदिंग चला जाएगा तो फिर आप क्या करोगे? So you have to check both the things. Okay, there is a SCAT assessment tool. मतलब एक SCAT फॉर्मेट होता है, SCAT. इसमें नहीं है, बट मैं एक जनरली अभी आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा. If you will type on the Google the SCAT format, that is the concussion assessment tool in the head injuries in the sports. And FIFA पता है सबको? FIFA is an organization. Yes, ma'am. Yes, For ma'am. what? Football. फुटबॉल फेडरेशन. फुटबॉल. हाँ, फीफा का एक ये जो हेड इंजरी वाला पार्ट है वो फीफा का एक स्कैट फॉर्मेट आता है. स्कैट, SCAT. व्हाट इज दैट? द स्पोर्ट्स कंकशन असेसमेंट टूल. ओके, कंकशन असेसमेंट टूल में बहुत सारे फॉर्म्स है, बहुत सारे नहीं, 3-4 फॉर्मेट है उसमें अंदर, जो अगर अभी ये जो फीफा फेडरेशन का जो स्टैट फॉर्मेट है, दिस इज यूजिंग वर्ल्ड वाइड. अगर कोई भी हेड इंजरी होती है तो वी आर यूजिंग इन द क्रिकेट ऑल्सो.
दैट इज कैट फॉर्मेट। तो उसमें अगर किसी को नाउअडेज, अभी रिसेंटली एक एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं। लास्ट टू लास्ट ईयर आई वाज इन इंडिया बी टीम, women's team. The two players were coming to field a ball and they got वो आपस में भिड़ गए। they were looking to the ball and they didn't see each other and they got injured. एक का हेड इंजर्ड हुआ था और एक का नी में लगा था। तो हेड इंजरी वाले वो थोड़ी देर के लिए फेंट हो गई। सो व्हाट वाज आर what would be our treatment plan, our line of treatment plan is to सबसे पहले उसको देखा कि उसका कॉन्शियस लेवल क्या है, उसके बाद वी वर रेडी टू गिव द सीपीआर एंड उसका ब्रीदिंग हम कंट्रोल कर रहे थे। देन वी कॉल द इमरजेंसी केयर टीम और डॉक्टर्स आए, उन्होंने चेक किया। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स वो खड़े हो गए। जिसको हेड इंजरी था, जिस प्लेयर को हेड इंजरी थी, वो खड़ी हो गई। उसके बाद वो बोली नहीं मैं ठीक हूँ, मैं मैच खेल सकती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मुझे उसे बाहर लाना पड़ा एंड वहां पर उसका पूरा अभी उस टाइम मैच चल रहा था, उस टाइम हम कुछ नहीं कर सकते थे एंड इट वाज एन एथलीट्स कॉल कि उसको मैच खेलना था। उसके बाद वो मैच खेली। आफ्टर दैट वो मेरे पास आई मैच खत्म होने के बाद, बोली मैम मुझे हेडेक हो रहा है। सो इट इज अ रूल टू isolate the patient, isolate in the sense to isolate from the game for 24 to 48 hours। उनका ऐसा रूल है कि उसको वॉच करना होता है, ठीक है। उसके बाद पूरा वो फॉर्मेट होता है असेसमेंट का, वो पूरा चेक करना होता है। उसके पहले उसे आप गेम में नहीं भेज सकते। अभी रिसेंटली इंडिया टीम की एक प्लेयर को हुआ था लखनऊ में, जब मैचेस चल रहे थे, अभी 1-2 महीने पहले की बात है। आई थिंक कौन था पता नहीं, आप लोग को रिमेम्बर है इंडियन वुमेन टीम्स के नाम की नहीं पता है। आई थिंक प्रिया पुनिया वाज देयर। उसको हेलमेट लगाई हुई थी, उसको हेलमेट में बॉल लगा। ओके, देन आई केम टू नो फ्रॉम अदर पीपल कि उसको 48 आवर्स के लिए, अगले दिन मैच खत्म और टीम को जाना था, बट वो नहीं निकली क्योंकि उसे 48 आवर्स के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया और सिम्टम्स कुछ भी नहीं थे, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट इट वाज अ रूल फ्रॉम आईसीसी कि उसको 48 आवर्स के लिए हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। उसको कोई सिम्टम्स भी नहीं है, शी वाज फाइन टोटली and she went through this CT scan also and the whole assessment was done without any symptoms showing. So this is the rule of concussion injuries, especially I'm telling this is the maxillofacial injuries, but I'm telling about the whole. If there is any head injury, if there is any direct blow to the head through ball, through any suitable equipment, so there is the some rule you have to follow, and the first line of treatment is yours airway breathing. Okay, airways control and breathing. तो कुछ समझ में आया? आगे बढ़ूं? कुछ समझ में नहीं आया? आ गया मैम। मैम लूसिड इंटरवल भी इसी को ही कहते हैं क्या? किसको? मैम जब जैसे कि पेशेंट को 48 आवर के लिए हॉस्पिटल में रखते हैं तो इसी फेज को चेक करते हैं, लूसिड इंटरवल। लूसिड इंटरवल मैंने तो नहीं सुना ये टर्म, कहाँ देखा आपने? मैम ये ब्रेन इंजरी में मतलब होता है मैम, जब थोड़ी देर के लिए पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है, फिर उसे जब कॉन्शियस आ जाता है तो इसी फेज को कहते हैं मैम। ओके, मैंने ये एक्चुअली अभी टर्म यूज नहीं किया है, मैंने सुना भी नहीं है। तो मैम हम लोगों ने सर्जरी में भी डिपेंड्स, पढ़ा था अभी थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में इट डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग आई थिंक। व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ दैट पीरियड? यस मैम। लूसिड इंटरवल, ठीक है, मैं देख के बता दूंगी व्हाट इज दैट एग्जैक्टली वर्ड। ओके मैम। और क्या पूछ रहे थे? Any other query? Okay. So what are the different types of maxillofacial injuries? The first one is the airway injuries.
The most dangerous of all maxillofacial injuries encountered in athletics is that resulting from a blow to the neck by a hockey stick, puck, or other such equipment. Careful attention and observation of even seemingly minor injuries to the larynx is critical because of the potential for progressive worsening of life-threatening airway obstruction as edema progresses in the post-injury period. So, this is the airway injury in which why you have to focus on your airways. For a patient with a history of blunt trauma to the neck, the significant signs and symptoms of laryngeal injuries include hoarseness of voice, difficulty breathing, pain on swallowing, that is dysphagia, tenderness, subcutaneous emphysema, hematoma, and hemoptysis. So, what you will find in the examination, the voice quality may be described as muffled, hoarse, or breathy, depending on the specific location of the injury. Okay, so it is primarily important to recognize a change in a voice quality. So, all patients with suspected laryngeal injury based on the above signs and symptoms should be referred immediately for endoscopic examination, ABD definitive therapy. I think it should be the for endoscopic examination about definitive therapy. Okay, mistake here, typing mistake. So what is the second injury? Is the soft tissue injury. If there is a maxillofacial injury, first is your airway injuries, that is the direct blow or trauma to the larynx, and the second one is your soft tissue injury around the maxilla. The most common injuries to the head and face involve trauma to the soft tissues, resulting in contusion, abrasion, and lacerations. What is contusion? This is from contact with a blunt object, required attention to the possibility of injury to a deeper bony structures. ये आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्जरी में. What is the contusion, concussion, abrasions and lacerations? So, in the absence of such damage, the bruised area needs little more than ice for comfort and pressure to inhibit the development of a hematoma. Just a second. Okay. So, special consideration, however, must be given to a contusion to the external ear. In such an injury, any accumulated blood beneath the skin surface should be aspirated or drained to prevent permanent deformation of the underlying auricular cartilage called as cauliflower ear. This condition is quite common in wrestlers and is easily prevented with the use of appropriate protective headgear. So now you can understand why the protective gears are important for the sports to prevent the certain types of injuries. So aspiration can usually be carried out without anesthesia, but formal incision and drainage may require infiltration of local anesthesia. So a small amount of lidocaine with epinephrine is injected into the hematoma, and the area is gently massaged. The lidocaine and hematoma are then removed after the procedure. So the next one is the abrasions. What is the abrasions? This occur when the integrity of the skin surface is lost as a result of fall or collisions with hard or rough surfaces. Careful, gentle cleansing of the abraded surface should be carried out, and particular attention must be paid to an embedded foreign bodies such as dirt or asphalt. Small areas of abrasion are treated immediately and require only a simple antibiotic ointment dressings. ये तो कहीं भी हो सकता है, हेड के अलावा भी कहीं हो सकता है. If there is any abrasion, so just normal dressing you do
that should be your line of treatment. Lacerations of the face, scalp, and neck may be accompanied by brisk bleeding initially, which reflects the area's rich blood supply. This blood supply is greatly beneficial in terms of quick healing and resistance to infection. The main aim of your treatment is to prevent the wound from the infection or any foreign body. Control of acute bleeding is the first priority and is accomplished by simple pressure over the wound with sterile gauze. So there are the two types of laceration, the linear laceration and stellate laceration. What is that? The linear lacerations result from contact of the skin with sharp objects such as skates or sticks. And what is the stellate? Lacerations have appearance of bruising of the skin and usually result from a blunt object striking skin that overlies the bone. The most favorable repair of lacerations occur when early cleansing is carried out and debridement of all foreign material is accomplished. This is particularly important for wounds that are grossly contaminated with dirt, grass, gravel, and the like, as foreign material may promote subsequent wound infection. The effective cleansing and debridement of foreign material and prompt skin closure are the most effective means of promoting good healing in the absence of the infection. So this was about the abrasions, and the last one is the type of injury is the ocular injuries. An estimated ocular injuries occur annually in the United States as a result of athletic activities. The use of protective equipment in sports such as football and amateur hockey has caused a significant reduction in such injuries, but a large number of players who are unprotected, like in baseball, basketball, racket sports, and professional hockey, for example, result in a significant risk for devastating injuries. So if the athlete is wearing the appropriate protective equipment, there will be chances of less injury. If there is a collision sports like rugby, soccer, so there can be a high risk of injuries according to the collision sports. So this was all about the maxillofacial injuries. In that, I have discussed a bit about the head injuries also. So later on, you will read it, the head injuries according to your syllabus. So any queries in the maxillofacial injuries, so that I can discuss today the principles of training. So tell me about the queries. मैम वो अभी आपने एक एग्जांपल बताया था कि इस अभी एथलीट स्पोर्ट्स में मतलब एक इंजरी हुई थी जिसमें दो लोग आपस में टकरा गए थे। दो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मैम अभी हाँ आ रही है बोलो। मैम एग्जांपल में आपने एक चीज एक्सप्लेन करी थी कि दो एथलीट थे वो उसमें कोलाइड कर गए थे जिसकी वजह से एक पर्सन को हेड इंजरी हुआ था एंड सेकंड गेट इंजर्ड एट नीज। तो मैम हेड इंजरी जिसको हुई थी उसमें आपने बताया था कि आफ्टर प्ले हेडेक कंप्लेन किया था, हेडेक कंप्लेन किया, देन उसके बाद में मैम क्या प्रोसेस था आफ्टर उसके मतलब क्या रहा? देखो बिटवीन गेम अगर बहुत गेम चल रहा है so you can suggest only. After that there will be athlete's call and the management call. You will tell your suspected diagnosis in the short time in the on-field assessment, what you have assessed in the shortest time on field, and if there is no symptoms showing, an athlete
showing no symptoms on field, and the simplest, the most common question asked is like, where are you, and what happened in last over, or if there is a football game, who goaled in the last session. So these are the questions in that format, जो मैं आपको स्कैट फॉर्मेट बता रही हूँ ना, उसमें अगर आपके पास बहुत कम टाइम है एंड यू असेस्ड एंड उसने बोला ठीक है ये था, तो आप उसको कंटिन्यू, या मैनेजमेंट बोलेगा नो, इफ शी इज सेइंग शी इज फाइन, शी कैन प्ले, लेट इट बी, ठीक है। उसके बाद जब मैच ओवर हो जाएगा, फिर वो आपके पास आएगी, देन you have sufficient time to assess the patient with the scat format if there is impact in the head area, ठीक है। अभी जो मैंने अभी बताया वो फॉर्मेट मैंने कहीं सेव किया है, बट आई कैन नॉट शो इट हियर बिकॉज उसको टाइम लगेगा ढूंढने में। आप सिंपली अभी भी गूगल में डाल के देखोगे स्कैट फॉर्मेट, SCAT, स्कैट फॉर्मेट फॉर द हेड इंजरी, वो आप खोल के देखोगे, उस पर क्वेश्चनर है, ठीक है, क्वेश्चनर है। आप जब वो क्वेश्चनर देखोगे ना तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा व्हाट इज योर असेसमेंट टूल। उसका असेसमेंट ये असेसमेंट नहीं होता है जो अभी आप लोग ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और टेस्ट और ये सब देखते हो ना, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है हेड का असेसमेंट। वो अगर आप देखोगे ना तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सो अगर आप पूरा असेसमेंट करोगे और उसमें अगर आपको कुछ भी फाइंडिंग्स एबनॉर्मल होंगी, so you can restrict the patient, or you can restrict the athlete for the next match and send him or her to the emergency medical team. Okay, ma'am. Okay, got it. Yes, ma'am. मैम ये आपको बता यही दिया हम सब लोग, आप लोग के मैम सिलेबस में ये नहीं है, बट मैं फिर भी आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया दे रही हूँ व्हाट इज दी ऑन फील्ड असेसमेंट और ऑन फील्ड इंजरी। बिकॉज अभी अगर आप यहाँ से भी निकलोगे, कुछ भी ट्रेनिंग भी करो, आई मीन आपका अभी इंटर्नशिप भी है, उसके बाद भी अगर आप लोग कुछ भी ऑन फील्ड चेक करते हो, बिकॉज यू आर पास आउट ऑलमोस्ट, तो आप लोग को इतना तो आइडिया होना चाहिए व्हाट you have to do in the all on field if you are doing any academy job, sports academy job. तो on that is very awkward movement because आपके पास टाइम नहीं होता है, आपका फुल असेसमेंट के लिए टाइम नहीं होता है। you have to immediately assess and you have to give him or her the acute treatment in the form of taping, in the form of icing, in the form of non-steroidal anti-inflammatory drugs, in the many way. तो मैं बार बार आप लोग को इसीलिए बताती रहती हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो ऑन फील्ड जो आपका मैनेजमेंट होगा ना, बिकॉज यू आर दी ओनली मेडिकल प्रोफेशनल देयर फॉर द होल टीम। तो उनके लिए आप वहां पर एक पूरा मेडिकल पर्सन हो, वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप फिजियोथेरेपिस्ट हो, आपका ये जॉब नहीं है, आपका वो जॉब नहीं है, आप उनके लिए डॉक्टर हो। वॉट एवर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड यू हैव टू डू देयर, otherwise you can refer. That's why we used to read this Reiser treatment, correct, or Reiser treatment. If the things not in your hand, if things are not in your hand, sorry, if things are not in your hand, so you can refer the patient on behalf of yours, correct? yes, ma'am. Any other query? और किसी को कुछ पूछना है, और किसी ने कभी ऐसा कुछ फेस किया हो कहीं पे भी? You all should know about the CPR. कहीं भी किसी को भी जरूरत हो सकती है, और ये ऐसा नहीं है कि आप मेडिकली प्रोफेशनल हो तो आपको आना चाहिए। ये आजकल सबको बताया जा रहा है कि अगर कोई नॉन मेडिकल है उनको भी CPR के लिए ट्रेन किया जा रहा है नाउअडेज डिफरेंट स्टेट्स में। ओके,
So maxillofacial injuries and a bit about head injury clear है? कोई Yes, क्वेरी नहीं है ना? ठीक है, तो 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग. ओके, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी वाइवाज ऑल्सो कि आप व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग. इट कम्स अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंजरी प्रिवेंशन व्हेन वी विल read about the appropriate training. It comes under that. What is appropriate training? And before reading the appropriate training, what are the principles of training? You have to be in your mind, you have to take it in your mind also. What are the principles of training? क्योंकि उसके बेस पे ही आप आपकी अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग बनाओगे. किसी भी पर्सन को, किसी भी एथलीट को कोई भी ट्रेनिंग सजेस्ट नहीं कर सकते. ओके, लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू. okay, ma'am.
आप सबके पास नोट्स है ना? क्योंकि किसी का क्वेरी था कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंजरी प्रिवेंशन भी पढ़ाने के लिए बोला था मुझे किसी ने, तो वो मैं कल की क्लास में बताऊंगी, इंजरी प्रिवेंशन। बट अभी मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस कर देती हूँ। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं बार बार पूछती भी हूँ, शायद आप लोग को याद हो। दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग। सो सारे लोग हैं ना, प्रेजेंट है ना? Yes, ma'am. ओके। So training is a pursuit of activity that will ultimately lead to an increase in performance in a given sport. So there are main four principles of training. First one is your periodization, second one is specificity, and third one is your overload, and fourth one is your individuality. Okay, इसमें ऐसा कुछ भी रटने वाली बात नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दो स्पोर्ट्स के अलग अलग लोगों को लेती हूँ, सपोज एक फुटबॉलर है और एक क्रिकेटर है सपोज, तो अगर हम उसकी ट्रेनिंग के लिए बोलते हैं, ट्रेनिंग इन द सेंस उसका स्किल, स्किल आप लोग समझते हो ना, मैं बार बार स्किल वर्ड यूज करती हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्किल? कोई बता सकता है? इन द टर्म्स ऑफ, सपोज एक फुटबॉलर है और एक क्रिकेटर है, सो हाउ विल यू डिफाइन द स्किल ऑफ दैट पर्टिकुलर एथलीट? मैम अगर हम फुटबॉलर की बात करते हैं तो वहाँ पर क्विकनेस, उसकी स्किल, एजिलिटी, ये सारे वर्ड। अच्छा, नो, एनी अदर? मैम या तो फिर उसके बेसिस में होगा कि जो भी एक पर्टिकुलर गेम है तो उसमें हमें किस तरीके की ट्रेनिंग करानी है नो, athlete को। अभी ट्रेनिंग की बात नहीं, स्किल की बात अगर हम करेंगे, उसके गेम में क्या ऐसा है, वो उसका स्किल क्या है? स्किल इन द सेंस, अगर वो फुटबॉलर है तो वो मेन गोल करने वाला है या गोल कीपर है? सिमिलरली इन द क्रिकेटर, अगर वो क्रिकेटर है तो वो क्रिकेटर में क्या है? मेन बैट्समैन है, बॉलर है, और एनी स्पेसिफिक फील्डर है। सो दिस इज द स्किल। स्किल अकॉर्डिंग टू द गेम, अगर बॉलर है तो उसकी स्किल टोटली डिफरेंट होगी, क्रिकेट में रह के भी अलग होगी। अगर एक क्रिकेट में ही बैट्समैन और बॉलर है तो दोनों की स्किल अलग अलग होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्किल? स्किल इज दैट द पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ दैट एथलीट इन द गेम, दैट इज द स्किल। और ट्रेनिंग जो हम कराते हैं वो स्किल इंप्रूव करने के लिए, देखो अलग अलग होती है। एक ट्रेनिंग, एक कंडीशनिंग होती है, कंडीशनिंग एक ओवरऑल फिटनेस होती है, एंड स्किल, स्किल सेशन अगर आप बात करोगे तो स्किल सेशन वो होगा जो उसका पर्टिकुलर, जो उसकी पोजीशन और जो उसका प्लेस होगा गेम में। तो गॉट माई पॉइंट? लाइक विराट कोहली है सपोज, फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली क्या है? बॉलर है, बैट्समैन Batsman. मेन बैट्समैन है, दैट इज हिज स्किल। He is famous because of because of his drives, his back foot punch. This is the specific shots he plays. ये उसका स्किल है। अगर एक फुटबॉलर है, अगर एक गोलकीपर है, फुटबॉल में भी वो गोलकीपर है, तो वो किस तरह से गोल सेव करता है, दैट इज हिज स्किल। ठीक है? आपका बुमराह है, बुमराह क्या है? बैटिंग करता है। Bowler. वो है बॉलिंग करता है। क्या बॉलिंग करता है? मैम बॉल को मैम फेंकते फास्ट हैं बॉलर ना। है वो। फास्ट बॉलर है, दैट इज हिज स्किल। अश्विन क्या है? मैम स्पिनर है। So Right this bowler. is this is the difference. This is the different skills of that particular athlete. That is skill training. अब सी, अभी उसने बोला एक फास्ट बॉलर है, एक स्पिनर है। नाउ यू देखो, बॉयज को ऑब्वियसली ज्यादा पता होता है क्रिकेट के बारे में, आई अंडरस्टैंड। गर्ल्स को उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। एक क्रिकेट ऐसा गेम है जो मैं बार बार इसलिए डिस्कस करती हूँ क्योंकि इंडिया में यही चलता है ज्यादा। ठीक है,
हम स्किल वाइज बात करेंगे ना, जब मैं क्रिकेट में नहीं थी, मैं क्रिकेट स्पोर्ट्स में जाने से पहले भी पसंद करती थी, देखती थी, मैं मेरा एग्जाम्पल बता रही हूँ। उसके बाद भी जब मैंने क्रिकेट में एंटर किया तो वहां पर जब स्किल सेशन चलता था, स्किल सेशन मीन द नेट सेशन, नेट सेशन में आपका काम कम होता है, कोचेस का काम ज्यादा होता है। कोचेस उनका स्किल ट्रेनिंग देते हैं, हाउ टू बॉल, हाउ टू प्ले दिस शॉट, हाउ टू बॉल इन दी दिस एरिया, इन द फास्ट बॉलर, इन द स्पिनर और इन द लेफ्ट आर्म स्पिनर। मेरे को भी उतना समझ में नहीं आता था, बट जब फर्स्ट डे मेरा था क्रिकेट में और वहां पर ट्रेनिंग चल रही थी, फिटनेस कैंप लगा था, फिटनेस ट्रेनिंग चल रही थी, फिटनेस कैंप में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिवाइड किया, जितने भी फास्ट बॉलर्स की गर्ल्स थी उनको उन्होंने एक ग्रुप में रखा, जितने भी स्पिनर वाले प्लेयर थी उनको उन्होंने एक ग्रुप में रखा, और दोनों की फिटनेस चल रही है बट फिटनेस डिफरेंट थी। फास्ट बॉलर के लिए थाउजेंड थाउजेंड की स्प्रिंट्स थी, और वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन में थी और सेट्स ज्यादा थे। और स्पिनर का इतना वो नहीं था, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं था उनका, शॉर्ट में था। 500 सॉरी हाँ 500 मीटर के स्प्रिंट्स थे, पर सेट्स ज्यादा थे, एक बार में उनको इतना रन नहीं करा रहे थे। आप समझ रहे हो मैं आपको क्यों समझा रही हूँ? बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग, कि अगर एक फास्ट बॉलर है उसकी रनिंग स्पीड ज्यादा होनी चाहिए विदाउट इंजरी, और जो स्पिनर है उसका भी रनिंग स्पीड होना चाहिए, बिकॉज उसका फील्डिंग भी तो उसको करना है, बट उसका जो मेन स्किल है दैट इज द स्पिन बॉलिंग, वो कैसे एक्यूरेट हो सकता है? थ्रू ट्रेनिंग। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? Yes, ma'am. सो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग में वही चीजें आती हैं, दैट इज द फर्स्ट वन इज द पीरियोडाइजेशन, जिसमें आपके 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज द कंडीशनिंग, और सेकेंड वन इज द प्रिपरेशन फेज, एंड द लास्ट वन इज योर्स कंपटीशन। कंपटीशन। करेक्ट। तो क्या करना होता है? कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग इन द टर्म ऑफ उसको प्रिपेयर करा रहे हैं हम, उसकी बॉडी को कंडीशन करा रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्किल। ओके, एंड जब कंडीशनिंग हो गई, कंडीशनिंग फेज जो होता है वो मैच के कुछ दिन पहले का होता है, मतलब टाइम लेके ट्रेन कराया जाता है, जो भी उसका रिक्वायरमेंट है उस एथलीट का। अगर टेनिस प्लेयर है तो उसका क्या होगा? क्विक टर्न्स होंगे, ठीक है, क्विक टर्न्स होंगे, तो उसके हिसाब से उसका कंडीशनिंग होगा, हाउ टू टर्न क्विकली राइट, हाउ टू टर्न क्विकली टू द लेफ्ट साइड। ओके, देन आपका आएगा प्री कंपटीशन। प्री कंपटीशन डे बिफोर द मैच, main match, and the competition phase, that is combining both the things, your conditioning and the pre-competition phase, that is periodization, how you categorize the time period for the training, कि 4 हफ्ते पहले कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मैच आ रहा है। आपका भी एग्जाम होता है, आप भी एग्जाम के लिए रेडी रहते हो पूरा साल भर, तो चलो ठीक है, चलो पढ़ रहे हैं, आज क्लास है, अब जब एग्जाम होगा तब देख लेंगे इसको। या सपोज कभी आपको कहीं जाना हुआ और आपको सडन जरूरत पड़ गई, आपको किसी ने बुलाया किसी मैच के लिए, वहां पर अब आपको लगेगा मैं क्या करूं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा। तो दैट इज द पीरियडाइजेशन। आप एग्जाम के 2 दिन पहले कितना पढ़ते हो और आप एग्जाम के 6 महीने पहले कितना पढ़ते हो, दैट इज पीरियडाइजेशन फॉर योर एग्जाम। सेम फॉर द एथलीट ऑल्सो, that is the first principle of training, how to train an athlete and how to make fit the athlete। आप उसे कितना फिट रखते हो? अगर आपके पास एथलीट आज आया है और बोल रहा है 2 महीने बाद मेरे मैच है, मुझे ऐसी ऐसी इंजरी है, यू हैव सफिशिएंट टाइम टू मेक हर फिट फॉर द मैच। समझ में आया?
periodization. Yes, ma'am. Okay, second one is the overload. ओवरलोड इन द सिंपल टर्म, मैं बुकिश लैंग्वेज में नहीं बता रही हूँ, मैं इतना बता रही हूँ, ओवरलोड आपको सेम वही है कि किसी भी मैच की प्रिपरेशन करते हैं तो टाइम लेके करते हैं, क्यों इतने कैंप्स लगते हैं टू ट्रेन एन एथलीट। ओके, तो ओवरलोड है, अगर उसकी कैपेसिटी 50 मीटर रनिंग की है 2 मिनट में या 1 मिनट में, तो यू हैव टू मेक देम ओवरलोड। आपको क्या करना है, डिस्टेंस सेम रखना है, टाइम शॉर्ट कर देना है ना, आपको बोलना है उसको हाई इंटेंसिटी पे रन करो, यू हैव टू कवर इट इन 1 मिनट, और डिस्टेंस बढ़ा दो, टाइम सेम रखो, यू हैव टू डू दिस बाय डिक्रीजिंग द टाइम और इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी। ओके, तो वो ट्रेन करेगा, एक दिन नहीं कंप्लीट कर पाएगा 1 मिनट में, 2 दिन नहीं करेगा, तीसरे दिन से करना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे वो शॉर्ट टाइम में भी डिस्टेंस कवर करता जाएगा, दैट मीन्स ही और शी इज इंप्रूविंग और he is getting trained. And third one is the specificity, again according to the game, specific position, specific place of the particular athlete. अगर गोलकीपर है, गोलकीपर तो ज्यादा रन नहीं करता है ना, गोलकीपर है फुटबॉल में, वो खड़ा रहता है एक ही जगह, उसके पास उसका काम क्या होता है, बॉल आएगा उसको बस पीछे गोल पोस्ट में जाने से रोकना है, तो वो वहीं उतने ही एरिया में खड़ा रहता है, बट ही मूव्स क्विकली लेफ्ट एंड राइट टू सेव द गोल, टू सेव द बॉल। तो उसका ट्रेनिंग डिफरेंट होगा टू अ गोलकीपर से, गोलकीपर कह रही हूँ, जो एक गोल करने वाला प्लेयर होगा उसका ट्रेनिंग अलग होगा कंपेयर टू गोलकीपर, और जो गोल पास करता है उसका ट्रेनिंग भी थोड़ा अलग होगा, क्योंकि इन सब की पोजीशंस अलग अलग होती हैं कोर्ट में। दैट इज द स्पेसिफिसिटी, उसको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग देना है। अगर कीपर है, सपोज क्रिकेट में ही कीपर होता है, कीपर के ड्रिल्स, कीपर सबसे अलग ट्रेनिंग करता है अपनी, वो बॉलर और बैट्समैन की तरह फील्डिंग नहीं करता ना, वो उसको एक ही जगह खड़े रहना होता है पूरे मैच में, तो उसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है टू कैच द बॉल इन एवरी बॉल। 300 बॉल्स होती हैं एक मैच में, एक सेशन, एक इनिंग में, तो उसको 300 बॉल उसको सेव करनी होती है अपने पास आने से, करेक्ट। तो उसका ट्रेनिंग स्पेसिफिक होगा, अलग होगा। फास्ट बॉलर है, उसका रनिंग पे डिपेंड होगा, उसका स्पेसिफिक ट्रेनिंग होगा, उसी के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी डिसाइड होती है। ओके, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लास्ट वन इज द इंडिविजुअलिटी। ठीक, इंडिविजुअलिटी तो सबको समझ में आता होगा कि मेरा स्टेमिना, मेरी अपनी कैपेबिलिटी कितनी है, दैट इज द इंडिविजुअलिटी। अगर किसी की कैपेबिलिटी नहीं है 10 kg उठाने की, तो फिर नहीं करा सकते आप उसको, नहीं 10 kg नहीं दे सकते। और वहीं दूसरा प्लेयर होता है, उसका स्ट्रेंथ और आई एम सो सॉरी बिकॉज ऑफ दिस नॉइस, तो आप उसको नहीं फोर्स कर सकते उसको सेम वेट उठाने के लिए, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ अलाउ नहीं कर रहा है। उसी टाइम में दूसरा प्लेयर है, उसका स्ट्रेंथ प्रॉपर है और ही कैन लिफ्ट द वेट ऑफ 12 kg इन वन टाइम। दैट इज द इंडिविजुअलिटी। According to the body strength, according to the body physique, the training will be in the individuality form. Okay, so this was about the principles of training, and it is very important to keep in your mind the principles of training especially. किसको aerobic training की जरूरत है, किसको speed की जरूरत है, किसको agility की जरूरत है, this will depend in the principles of training. आप कौन सा गेम देख रहे हो, आप बैडमिंटन देख रहे हो तो उसमें देख रहे हो कौन सा स्किल रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से आपका ट्रेनिंग होगा, और अगर उस हिसाब से ट्रेनिंग होगा तो चांसेस ऑफ इंजरीज भी उसके अकॉर्डिंग होगी, जो आपको समझ में आएंगी थ्रू मैकेनिज्म ऑफ इंजरी।
आई होप अभी सबको क्लियर हो गया होगा, तो ये आपके लिए कल इजी हो जाएगा समझना व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग में आपका आएगा एरोबिक ट्रेनिंग आएगा, एनोरोबिक आएगा, स्ट्रेंथ एंड पावर ट्रेनिंग इन द जिम आएगा, प्लायोमेट्रिक्स आएगा, स्पीड ट्रेनिंग आएगा, एजिलिटी आएगा, क्रॉस ट्रेनिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग and you have to suggest according to the athlete's requirement, correct? ये चार चीजें हमेशा याद रखना कभी भी ट्रेनिंग में। ये बहुत, एक तो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, दूसरा बहुत एप्लीकेबल है प्रैक्टिकली। यू कैन नॉट प्रिस्क्राइब द सेम एक्सरसाइजेस फॉर ऑल। ओके, समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, so tomorrow we will discuss about the principles of injury prevention. Notes सबके पास है, please notes open करके रखना, ठीक है? I will Yes, just ma'am. explain it, huh? In short. Okay, any queries for today's class? मैम हाँ, बॉलिंग में बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं, पेस बॉलिंग, फास्ट, स्लो। हाँ, मैम स्पिनर मींस स्लो बॉलिंग। no, ball will spin during ओ pitching. जैसे ही पिच करेगी बॉल, मतलब जैसे ही बॉल डिलीवर होती है ना, तो यस ऑफ स्पिनर होता है एंड लेग स्पिनर होता है। देखो ये सब टर्म्स हैं, ये आई थिंक बॉयज को ज्यादा समझ में आ रहे होंगे। आप अगर देखो, आप देखना शुरू करोगे, अगर आज से मैम। भी मैच है हमारा मैम क्रिकेट तो विमेन। देखते ही हैं, बट इतना मतलब बॉलिंग कौन सी हो रही, कैसी हो रही, बस ये देखते हैं कि कितने रन बने, आउट का क्या हुआ क्या हुआ, जो बस। लॉन्ग डिस्टेंस से बॉल फेंकता है ना, इनिशियली जब मैच शुरू होता है, जो बॉल ओपन करता है, माने फर्स्ट 3 to 4 ओवर्स में जो बॉलिंग करते हैं, मोस्टली देखा होगा तुमने, लॉन्ग डिस्टेंस से आते हैं, रनिंग करते हैं। यस मैम, बहुत दैट इज बहुत पेस बॉलर, दैट पेस बॉलर एंड फास्ट बॉलर। बॉय गर्ल्स में मोस्टली पेस बॉलर्स होती हैं, बिकॉज उनकी स्पीड रिकॉर्ड करेंगे तो कंपेयर टू मेन उतनी स्पीड नहीं होती है, सो दे कॉल्ड द पेस बॉलर एंड मीडियम बॉलर। मैम पेस वर्ल्ड एंड फास्ट बॉलिंग बोथ आर सिमिलर। ऑलमोस्ट सिमिलर, बट डिपेंड्स ऑन द स्पीड। फास्ट ओके बॉलर तो वो फुल फुल स्पीड होगा उसका, बट पेस पेस भी उतना ही होता है। पेस मीन्स फास्ट बॉलिंग ही होता है, बट वो कहीं ना कहीं हर किसी की स्पीड सेम नहीं होती ना, यस मैम। इसीलिए। झूलन गोस्वामी का नाम सुना है? यस मैम। हाँ, उनकी स्पीड अभी गर्ल्स में उनके जैसी जितनी स्पीड किसी भी प्लेयर की नहीं थी। अब तो नए नए क्रिकेटर्स आ रहे हैं, तो अब तो सब कर लेते हैं, बट उनके टाइम जब से वो खेल रहे हैं, उनका 104 या 105 ऐसे कुछ था उनका स्पीड। तो वो फास्ट बॉलर में आते हैं। बाकी सबका इतना स्पीड नहीं होता है, किसी का 98 है, किसी का 97 है, तो वो उसके हिसाब से ही वर्ड डिसाइड होता है। दिस इज पेस बॉलर, फास्ट बॉलर, मीडियम पेस बॉलर, मतलब उस स्पीड कितना कम हो गई है। और फास्ट माने इनके जैसा फास्ट कोई रनिंग पे नहीं फेंक सकता। उनका जो बॉल का स्पीड जो रिकॉर्ड करा जाता है उस ज्यादा होता है। जैसे मैंने अभी बोला 105, और किसी का 98 है, किसी का 101 है। दैट इज यस मैम। दी पेस बॉलर और फास्ट बॉलर। स्पिनर में ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, देखो ये सब टर्म तो मैं नहीं समझा पाऊंगी अभी, ठीक है, क्योंकि ये मैम प्रैक्टिकली। बस केवल वर्ड्स की पता करना था कि मतलब क्या होता है, बार बार वर्ड स्पिनर आप में रनअप स्लो होता है, उसको उतना दूर से रन करके नहीं आना होता है, उसका रनअप हमेशा शॉर्ट होता है। कभी देखना, अभी चहल को देखना, कभी युजवेंद्र चहल जब बॉलिंग करता है, तुम बस इतना डिफरेंस चेक कर लेना कि बुमराह जब बॉल डालता है तो कहाँ से डालता है, और जब चहल है या कुलदीप यादव है या अश्विन है, ये लोग जब बॉल डालते हैं तो कितने डिस्टेंस से डालते हैं, बस इतना देख लेना, पता ओके चल मैम। जाएगा, मैम ठीक है? यस मैम। एनी अदर क्वेरीज? मैम एंड कटिंग, बार बार वो भी एक कटिंग डाली तो इट इज अ काइंड ऑफ मतलब बॉलिंग, वही कटिंग? मैम।
बार बार Cut is a shot, batsman shot. Cut, pull. That मैम is उसमें bats. एक कटिंग में आप एक्सप्लेन करते थे ना, कंटिन्यूएशन एक ही स्पीड में जा रहा है एंड सडनली उसे See, टर्न कर that रहा is the running. That वो bowling में नहीं आता है cutting. है। ओके मैम। Cutting जब फील्डिंग करते हैं ना, कभी किसी प्लेयर को देखा है फील्डिंग कर रहा है, लॉन्ग बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग कर रहा है, ठीक है, बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग कर रहा है, वो उसकी तरफ बॉल जा रही है और वो भी बॉल की तरफ आ रहा है, सडनली बीच में एक प्लेयर आ जाता है और बॉल थ्रो कर देता है लेके, यस और मैम। डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो उधर जा रहा है और सपोज बॉल गिरी और टर्न हो गई, सो ही हैज टू चेंज द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ बॉल, दैट इज कटिंग। मान लो सामने रनिंग कर रहे हैं एंड सडन किसी ने क्लू दिया टर्न राइट, एंड फॉरवर्ड स्पीड में उसको राइट पे टर्न करना होता है, दैट इज कटिंग। ओके मैम। और कट द बॉल, कभी कमेंट्री में भी अगर आपने सुना हो कि ही वेंट एंड कट द बॉल, वो सीधा रनिंग कर रहा था, बॉल सडनली टर्न हुई और उसने कट करके, मतलब बॉडी का जो प्रोपल्जन मूवमेंट है जो वो फॉरवर्ड में है, ठीक है, स्ट्रेटर है, एंड सडनली ही हैज टू टर्न इनटू द योर इनटू हर हिज और हर राइट साइड और लेफ्ट साइड डिपेंडिंग ऑन द बॉल डायरेक्शन, दैट इज कटिंग। कटिंग उसमें नहीं आएगा, बॉलिंग में नहीं आएगा। मैम Okay, इसे ma'am. ही एजिलिटी ड्रिल्स ट्रेनिंग में कहते ये हैं ना ही, इसे? हाँ हाँ हाँ, जब एजिलिटी ड्रिल्स करवाते हैं ना, जैसे टी रनिंग यस मैम। कराते हैं, यस मैम, टी उसमें फॉर्म कराया, एग्जाम्पल टी, बताया था। हाँ टी रनिंग कराया, अगर सपोज टी फॉर्म कराया, टी फॉर्म कराया और सपोज एक इमेजिन करो टी बना हुआ है और जो नीचे है टी का जो एंड है वहां से प्लेयर स्टार्ट करता है, पहले सीधे जाता है, अब कटिंग कैसे होगा, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड टी की लाइन बनी हुई है। आई विल शो यू इन दी फिटनेस टेस्ट, जब मैं अभी पढ़ाऊंगी ना, मेरे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी है, तो मैं वो शेयर कर दूंगी, उसमें पिक्चर्स बने हुए हैं एजिलिटी ड्रिल्स के, तो मैं आपको उसमें शो कर दूंगी तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके मैम। कटिंग, कटिंग वही होता है, सडनली आपकी बॉडी फॉरवर्ड रनिंग स्पीड में है एंड यू गेट अ क्लू टू टर्न राइट साइड और लेफ्ट साइड और बैकवर्ड ऑल्सो, सो दैट इज द कटिंग, क्विकली चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन। ओके Any मैम, other थैंक यू query? मैम। Okay, any other query? No? Okay, tomorrow's class same time, I guess 12 to 1. यस मैम, 12 बजे है कल। ठीक है, okay, thank you. ओके, थैंक यू सो मच मैम। Thank you. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.